Hello everyone, so welcome to your own channel. It's called as Mathematics by Rumina, and in this video we are going to understand about permutations and combinations part 3rd. Yes, we have already done with the 2 videos, so please go and watch that video first of all, then come back to this channel and understand about part 3rd. So this video is basically aiming for class 12th and JEE main students. Okay, this video is going to be basically for your क्लास 12th एंड जेई मेंस. एडवांस के क्वेश्चन भी मैं बनाऊंगी बट वो आपके लास्ट पार्ट्स के अंदर आएंगे. ठीक है, सो डोंट वरी, कंटेंट सारा मिलेगा बट हाँ सीक्वेंस में मिलेगा आपको थोड़ा सा कंटेंट. एंड मैं डेली आपके लिए वीडियोस बना ही रही हूँ, सो प्लीज़ लाइक बटन दबाते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए ताकि और वीडियोस प्रोड्यूस मैं करती रहूँ. यू नेवर नो, आई कैन इवन मेक दिस एज माई फुल टाइम वर्क ओनली. ओके, सो नाउ what is going to do in this chapter. In the last two parts also we were just dealing about selection. In this part also we're going to do one of the topic of selection, that is going to be your geometric selection. Now what is geometric selection? When you have you must have seen the questions in which we have to make so much lines, or we have to make so much rectangles, or we have to make so much rectangles, some of the diagonals. Like that we have some different questions, and according to that we are going to find the things. Now let's understand this question. This question is for class 12 students. I would say class 11th, क्योंकि PNC तो class 11th में ही है, sorry. So this is basically for class 11th, and believe me, this is one of the most important question for class 11th students. ये आपको बहुत सारे papers में देखने को मिल जाएगा for sure. There are n points on a circle. Okay. Joining these points, how many lines can be made? If there is a circle and there are n points in that. Okay, if I just prepare n points on a circle like this. मुझे नहीं पता कितने points होंगे but n points है. So randomly बहुत सारे points होंगे मेरे पास circle में, मैं इसे मान के चल रही हूँ. So how many lines can be made? For making a line, how many points we want? We just want 2 points. So from these n points, if I just take 2 points, I will be able to form a circle. बेटा even जो ये बहुत पास है, अगर मैं यहाँ देखूँ तो क्या यहाँ पे मैं एक लाइन नहीं बना सकती इस तरीके से? Obviously it will look like a circumference, but वो actually circumference नहीं होगा, वो curve नहीं होगा, वो एक लाइन होगी proper. So क्या कुछ आंसर बन जाएगा इसका? इसका आंसर बहुत ही सिंपल है, that is NC2, because we just need 2 points to make a line. So and we have n number of points, so NC2. Now joining these points, how many triangles will be made? So कितने triangle बन सकते हैं बेटा? For triangle we simply know that okay, we should have 3 points. Similarly it would be NC3. That's it there, that is your answer. This is one of the most important questions for your class 11th. Now joining these points in a polygon is made. Now a polygon has been prepared for him, and you know ना polygon कोई भी figure होगी, but it should be the n should be greater than equals to 3. दैट मीन्स ट्रायंगल जो है सबसे छोटा पॉलीगन मेरे पास होता है, उसके अलावा मेरे पास बहुत सारे पॉलीगन्स मेरे बन सकते हैं. फाइंड नंबर ऑफ इट्स डायगोनल. अब मेरे पास पॉलीगन्स ही बहुत सारे बन सकते हैं, अब उनके भी डायगोनल्स हमें सोचने हैं. सो दैन नाउ इट इज़ अ टास्क. कैसे करेंगे? फॉर दैट यू नो कि सबसे पहले फॉर मेकिंग अ डायगोनल्स वी नीड 2 points. सो अगेन वी हैव NC2. दैट मीन्स डायगोनल्स मैं ऐसे बना सकती हूँ, प्लस ऐसा भी कंडीशन होगा कि दो जो पॉइंट्स होंगे वो एडजस्टेंट होंगे एक दूसरे के, तो यहाँ पे डायगोनल नहीं बन सकता. सो दैट मीन्स -n. क्लियर हुआ? NC2 बिकॉज मैं कोई भी 2 पॉइंट्स लेकर अपने डायगोनल्स को ड्रॉ इजीली कर सकती हूँ. -n बिकॉज जो भी पॉइंट्स एडजस्टेंट होंगे वो ऑब्वियसली डायगोनल फॉर्म नहीं करेंगे. सो दैट इज -n. सो ये आ गया मेरा आंसर. सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको थोड़ा सा. So that would be n factorial upon 2 factorial into n minus 2 factorial minus n. इसको भी क्या लिखूंगी? n minus 1, n minus 2 factorial. Cancel. So what we are left with? We are simply left with n minus 1 upon 2 minus n. If you want, you can just simplify it further on. So that would be n square minus n minus 2n upon 2. So that would be basically your n square minus 3n upon 2. कभी कभी ऑप्शंस ये गिवन होता है, कभी कभी ऑप्शंस ये गिवन होता है. सो यू शुड बी रेडी विद बोथ. आपको दोनों ही पता होना चाहिए. और ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जेईई मेंस में आ चुका है, तभी मैंने यहाँ पे लिया है इन PYQs.
बट ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जिसे मैं कह सकती हूँ इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ईजिएस्ट क्वेश्चन, बिकॉज कहीं ना कहीं ये भी सेम क्लास 11th में डिस्कस किया जाता है इन योर स्कूल इटसेल्फ। ये ऐसा क्वेश्चन है जो स्कूल में आपको ऑलरेडी बताया जाता है, सो इट्स वन ऑफ द मोस्ट ईजिएस्ट क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज there are 9 points, no 3 of which are collinear except 4 of them which are on a line. How many are straight line, triangles and quadrilaterals? Let's read this question one more time. There are 9 points, okay, no 3 of which are collinear except 4 of them which are on a line. If 4 of them are on a line like this, they are going to be form a line. I'm just making a triangle over here कि ये चारों जो है एक लाइन फॉर्म कर सकते हैं। सो 9 - 4 इज 5, सो दैट मीन्स 5 क्या होंगे, रैंडम पॉइंट्स होंगे मेरे पास। ऐसे लिख सकते हो मैं 5 को, मैंने ये 5 पॉइंट्स ले लिए मेरे पास। हाँ, सो हाउ मेनी स्ट्रेट लाइन्स आर देयर? इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन, बिकॉज वी नो दैट स्ट्रेट लाइन के लिए मुझे क्या चाहिए बेटा, 2 पॉइंट्स चाहिए बेसिकली। ये 5 है यहाँ पर। अब ये 5 जाए किसी भी कंबाइंड हो सकते हैं, या ये 5 खुद में भी पहले कंबाइंड हो सकते हैं। इट इज गोइंग टू फॉर्म अ लाइन ओनली। सो 5C2 पहले ये बन गया। नाउ मेकिंग द केसेस, बेसिकली मैं केस को बस प्लस में लिख रही हूँ। एक होगा कि यहाँ से जाके यहाँ पे जाके एक पॉइंट ऐड होगा, दैट मीन्स यहाँ से एक लाइन बन जाएगी, यहाँ से एक लाइन बन जाएगी, यहाँ से एक लाइन बन जाएगी, ऐसे में बहुत सारी लाइन बन सकती है इजिली। सो दैट वुड बी योर बेसिकली, आई कैन जस्ट राइट 5C1, एक पॉइंट मैंने यहाँ से लिया और एक पॉइंट मैंने यहाँ से लिया, 5C1 × 4C1। क्लियर? नाउ थिंक वन मोर टाइम, दैट इज अगर मैं चाहूँ तो क्या यहाँ से भी लाइन नहीं बन जाएगी? अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन करूँगी, इट इज गोइंग टू फॉर्म अ लाइन ना, सो दैट वुड बी 4। ओके, सो अगर देखो मतलब यहाँ से अगर मैं लाइन बनाऊँ तो वो बहुत सारी लाइन एक ही बार बन जाएगी ना मेरे पास। सो दैट मीन्स ओनली वन, दैट इज ओनली वन केस, बिकॉज जैसे मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दी यहाँ से इससे लेके यहाँ तक, तो ऑब्वियसली दोनों पॉइंट्स क्या हो कवर हो गए उसी के अंदर। सो दैट मीन्स वन लाइन कैन बी इजिली फॉर्म। सो +1 कर दिया। जस्ट सिंप्लीफाई करना, यू विल गेट योर आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन था मेरा, बहुत ही ओके। आई होप कोई डाउट ना हो यहाँ पर, अगर प्लीज है सो प्लीज लेट मी नो। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। नाउ हाउ मेनी ट्रायंगल्स कैन बी फॉर्म? एज यू नो, इफ आई वांट, अगर आपको यहाँ पे पॉइंट्स का डाउट हो रहा है कि मैम ये क्या पॉइंट सेम भी हो सकते हैं, क्या ये पॉइंट एक सेम लाइन में भी है? नहीं नहीं नहीं। जब हमें पता है कि 4 पॉइंट्स लाइन में है, तो ऑब्वियसली जो अलग 5 पॉइंट्स होंगे वो कहीं पर भी रैंडमली प्लेस होंगे। लाइक मैं इनको ऐसे ड्रॉ कर लेती हूँ। सो नाउ इट वुड बी ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि ये मेरे पास अलग से मेरे 4-5 पॉइंट्स है, तो हम इन पे वर्क कर रहे हैं। नाउ वी हैव बेसिकली ट्रायंगल। सो फॉर ट्रायंगल इफ यू कैन सी, क्या मैं ऐसे ज्वाइन कर सकती हूँ इनको ईजिली? अगर मैं 2 पॉइंट यहाँ से ले लूँ, एक पॉइंट यहाँ से ले लूँ, दैट वुड बी 5C1 × 4C2 प्लस, क्या मैं एक चीज़ कर सकती हूँ, क्या मैं तीनों पॉइंट यहीं से ले लूँ, है ना? सो 5C3। क्या मैं एक और चीज़ कर सकती हूँ, दैट मीन्स मैं 2 पॉइंट्स यहाँ से ले लूँ और एक पॉइंट यहाँ से ले लूँ, बिल्कुल बनेगा वो डायग्राम भी। सो 5C2 × 4C1, करेक्ट। ये केस बन गया मेरे पास। एक केस जब ये 5 पॉइंट में से मैंने 3 पॉइंट्स को लिया। दूसरा केस जब मैंने एक पॉइंट यहाँ से लिया, 2 पॉइंट यहाँ से लिया। तीसरा केस जब मैंने 2 पॉइंट्स यहाँ से लिए, 1 पॉइंट यहाँ से लिया। क्या कोई कंडीशन है कि मैं यहाँ से 3 पॉइंट्स ले लूँ? नहीं, वो तो ऑब्वियसली एक लाइन फॉर्म करेंगे। सो दैट इज +0, डन। नाउ सी पार्ट, क्वाड्रिलेटरल। नाउ फॉर क्वाड्रिलेटरल यू नो कि अगर मैं यहाँ से ले लूँगी 4 पॉइंट्स तो मेरा क्वाड्रिलेटरल बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। सो दैट वुड बी 5C4। अब अगर मैं 2 पॉइंट्स यहाँ से 2 पॉइंट्स यहाँ से लूँ तब भी बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। सो दैट वुड बी 5C2 × 4C1, सॉरी 4C2, ठीक है ना, 4C2। अब एक और चीज़ है, अगर मैं 3 पॉइंट्स यहाँ से ले लूँ, है ना, अगर मैं 3 पॉइंट्स यहाँ से लूँ और 1 पॉइंट यहाँ से लूँ तब भी बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। सो 5C3 × 4C1 +0, बिकॉज वो कंडीशन पॉसिबल ही नहीं है, ये चारों तो कभी मेरे क्वाड्रिलेटरल नहीं बना पाएंगे। सो फर्स्ट कंडीशन, जब मैंने 5 ये पॉइंट लिए, इसमें से 4 पॉइंट निकाल लिए। सेकंड कंडीशन, जब मैंने 2 पॉइंट यहाँ से 2 पॉइंट यहाँ से ले लिए। थर्ड कंडीशन, जब मैंने 3 पॉइंट्स यहाँ से लिए, 1 पॉइंट यहाँ से लिया। तो देखो ना, अगर मैं 1 पॉइंट यहाँ से ले लूँ, लेट मी जस्ट रब दिस डायग्राम ताकि आपको डाउट ना हो। यस, तो अब बहुत ध्यान से देखो। तो इफ़ आई वांट, कैन आई जस्ट डू वन थिंग, दैट इज 1 पॉइंट मैंने यहाँ से लिया, 1 पॉइंट ये रहा, 1 पॉइंट ये रहा, 1 पॉइंट ये रहा, जस्ट ज्वाइन देम। ओके, जस्ट ज्वाइन देम।
डोंट लुक एट अ ट्रायंगल, बिकॉज अगर ये पॉइंट को थोड़ा यहाँ कर देती हूँ, सो इट इज़ देन गोइंग टू फॉर्म अ क्वाड्रिलेटरल. ये पॉइंट्स रैंडम पॉइंट्स लिए बेटा, तो आपको थोड़ा इमेजिनेशन करना पड़ेगा. बेसिकली योर इमेजिनेशन शुड बी स्ट्रॉन्ग फॉर सच क्वेश्चन, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू डेल्ट विद इट. So for such questions you have to be very alert that okay, what all cases can be made. अभी देखने में सिंपल लग रहा है, बट हाँ, for this I would suggest, जब ये पेपर में आया था, so many kids have missed this point कि ठीक है हम 3 पॉइंट यहाँ से लेंगे, 1 यहाँ से लेंगे, तब भी मेरे पास क्वाड्रिलेटरल तो बन ही जाएगा ना. So that has to be the answer. I hope it must be clear to all of you. It is simple thing, it is not that much complicated, but हाँ, you have to be very alert while using your mind for such questions. Now one of the very hot question, I would say one of the very hot question, मैंने इसका थोड़ा और डिफिकल्ट वर्जन जो है अपने मेन जो वीडियो बनाऊंगी उसके अंदर फॉर श्योर रखूंगी. सो दैट इज, इन अ प्लेन देयर आर 8 लाइन्स, no 2 of which are parallel and no 3 are concurrent. How many triangles can be formed with their points of intersection as a vertex? With their point of intersection as a vertex basically. मतलब कि 2 जैसे लाइन इंटरसेक्ट करती है, जहाँ पे पॉइंट मिलता है, ऐसे मेरे पास बहुत सारे पॉइंट्स होंगे और मुझे देखना है कि उन पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन से मेरे पास कितने मेरे ट्रायंगल बन सकते हैं. नाउ इट्स समथिंग कि आई नो बच्चे तो सोच भी नहीं पा रहे होंगे कि मैम हाउ वी कैन स्टार्ट दिस. So first of all, do you think that we need to find the points of intersection that we have? So first of all, to find the points of intersection that we have, what we need to calculate? We need to calculate the points over here. First of all, we all know that when 2 lines intersect, we will get 1 point of intersection. ये बात सब बच्चे को पता है. तो जो ये मतलब था ना, no 2 of which are parallel and no 3 are concurrent, इसका मतलब क्या था? That when 2 lines intersect each other, they are going to give me 1 point of intersection. Okay. Now since there are 8 lines, so if there are 8 lines and if 2 lines intersect, I'm going to get my point of intersection. So that would be my point of intersection. My point of intersection is nothing but just 8C2. So my point of intersection is 8C2. So what will we get from here? It would be 8 factorial upon 2 factorial into 6 factorial. So 8 into 7 into 6 factorial, cancel, 4. And 4 into 7 is 28. So basically we have 28 points of intersection. We obtain that much. Now since we have 28 points of intersection, I know अगर मुझे निकालना है number of triangles, so that would be 28C3. Do you think we are done? Just think. No, we are not done, because this will give us, if all of them are going to intersect each other like this, all are going to be randomly made. But remember that if this is one line, this is like L1 and this is L2, so can I just have more lines like L3, L4, L5, L6, L7 and L8? So how many points of intersection we have? Just mark it and then you will be able to see. That is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. That means over here we have 7 points of intersection. And one thing is very amazing, that all these lines are parallel to each other. That means that yes, they are going to be parallel to each other like that, because they are going to cut one line first of all the times, like the way your L2 would be there. So it would be L1, L3, L4, L5, L6, and like that we are going to get 7 more cases. So first of all it would be minus 7C3, because there are 7 points of intersection, and from all this the triangle will not be made. And how many such cases would be there? If you want, you can just do minus 7C3 8 times, or just write 8 into, because this is for L1, then for L2, L1, then for L2, then for L3, then for L4, then for L5, then for your L6, then L7 and then L8. That means total 8 cases are going to be like this. So first of all, total can be made 28C3 minus 8 times 7C3. That is going to be our condition. Just solve it and you can simply get your answer for this question. Okay. Now let's start with the next kind of selections, and this is the last topic of your selection. You will say thank God this selection topic got finished. We have one more inclusive topic in selection which comes very less, but yes, one question has come till now. So I will discuss that as well, because that is important part of your probability basically.
So you must be very much clear with that as well. So observation selections. So now what observation selections we are going to do? It is one of the topic of your sets also, कि हम लोग चीज़ों को कैसे सेलेक्ट करते हैं. ये मैं बाद में करूँगी. सॉरी, पहले मुझे ये वाला क्वेश्चन डिज़ाइन करना चाहिए था. सॉरी, द सीक्वेंस हैज़ नॉट बीन मैच. सो फर्स्टली वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. कंसीडर अ सेट A 1 2 3 4. Find number of subsets. So now set A is A 1 2 3 4. Let the number of subset be your B. If I say that number of subset, like let the set be B, basically B is equals to set that contains the subset of A. So set that contains the subset of A basically. So B is going to be, अब देखो 1 या तो सबसेट होगा या नहीं होगा, तो 2 चांसेस के भी. 2 या सबसेट होगा या नहीं होगा, 3 या सबसेट होगा या नहीं होगा, या 4 या सबसेट होगा या नहीं होगा. यही केसेस है. मतलब हर में क्या है, 2 केसेस है. सो यहाँ से भी 2 केस है, यहाँ से 2 केस है, यहाँ से 2 केस है, यहाँ से 2 केस है. कितनी बार आए? 4 बार आए. सो 2 की पावर 4. ये मेरे पास मेरा आंसर आ गया. नाउ वी ऑल नो कि येस यू कैन से दैट येस दी. जब भी हम देखते हैं नंबर ऑफ सबसेट्स कैसे कैलकुलेट करना है, 2 की पावर n, और यहाँ पे क्या है 4 टर्म्स है तो 2 की पावर 4. ऐसे ही फॉर्मूला डिराइव हुआ है बेसिकली. In how many ordered pair P, Q can be made where P and Q are subsets of A and P intersection Q contains exactly one element. मेरे पास एलिमेंट्स क्या है? मेरे पास ये एलिमेंट्स है. इट इज सेइंग मी कि मुझे क्या करना है, मुझे देखना है कि मैं how many ordered pairs can be made where P and Q are subsets of A and P intersection Q contain exactly one element. अगर वो एक एलिमेंट कंटेन करता है, दैट मीन्स उसका क्या कंडीशन होगा? एक एलिमेंट कंटेन करने का कंडीशन होता है 4C1. लेट्स सपोज मैंने 1 जो है उसके अंदर कंटेन करवा दिया, तो मेरा 1 हट गया. नाउ व्हाट आई एम लेफ्ट विद? आई एम जस्ट लेफ्ट विद 3 2 3 4. अब देखो यार, 2 होगा, 2 नहीं होगा, या फिर 2 होगा नहीं होगा, या फिर कोई कंडीशन ही नहीं होगी 2 की. ये दिस कंडीशन इज ऑल्सो पॉसिबल ना. या तो मेरे पास क्या चीज़ है कि या तो 2 मेरा P के अंदर होगा, या 2 मेरा Q के अंदर होगा, या मेरा 2 A एंड P इंटरसेक्शन Q के अंदर भी नहीं होगा. सो दैट इज 3 कंडीशन है. इसके लिए 3 कंडीशन बनेगी, इसके लिए भी 3 कंडीशन बन जाएगी. सो व्हाट इट वुड बी? इट वुड बी बेसिकली 3 की पावर 3, बिकॉज 3 कंडीशन 2 3 4 है, इसलिए पावर में 3 आया, और 3 कंडीशंस थी इसलिए यहाँ पे बेस में भी 3 आ गया. दैट वॉज योर आंसर. दैट्स इट. लेट्स ट्राई दिस क्वेश्चन एज वेल. सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये आपके पेपर में आया हुआ है. सो देर आर 3 डिस्टिंक्ट मैथमेटिक्स बुक्स एंड 4 डिस्टिंक्ट केमिस्ट्री बुक्स. इन हाउ मेनी वेज बुक्स कैन बी सिलेक्टेड? अब देखो बेटा, ये तो मैथ्स की बुक होगी या नहीं होगी, है ना. डिस्टिंक्ट अलग अलग बुक्स है. सो लेट्स राइट M1 M2 M3 C1 C2 C3 C4, बिकॉज 4 डिस्टिंक्ट बुक्स थी. M1 होगा या नहीं होगा, M2 होगा या नहीं होगा, M3 होगा या नहीं होगा, C1 होगा या नहीं होगा, C2 होगा या नहीं होगा, C3 होगा या नहीं होगा, C4 होगा या नहीं होगा. सबके क्या है? सबके 2 कंडीशंस है, तो क्या बन जाएगी? टोटल कितनी है? 3 + 4 7 बुक्स है. सो 2 की पावर 7, बिकॉज होगा या नहीं होगा, कंडीशन तो 2 ही है ना बेटा बनाने की. देन योर बी इज एटलीस्ट 1 बुक कैन बी सिलेक्टेड. दोनों में से एक बुक को मैं क्या है सेलेक्ट कर सकती हूँ. जब एक बुक है तो दैट वुड बी 2 की पावर 7 -1, क्योंकि मुझे नहीं पता मैथ्स हो केमिस्ट्री हो कुछ भी हो, एटलीस्ट 1 बुक कैन बी सिलेक्टेड. मतलब कि सिर्फ एक बुक है जो सिलेक्ट नहीं होनी चाहिए, उसके अलावा सारी बुक्स क्या होनी चाहिए? सिलेक्ट होनी चाहिए. सो टोटल माइनस जो एक बुक सेलेक्ट नहीं हो रही, मैंने उसको बाहर निकाल दिया. सो एटलीस्ट 1 बुक कैन बी सिलेक्टेड. सी सिलेक्शन कैन बी मेड सच दैट एटलीस्ट 1 मैथ्स बुक इज सिलेक्टेड. एक मैथ्स की बुक बेटा होनी चाहिए, है ना. एटलीस्ट 1 मैथ्स बुक शुड बी देयर. सो दैट वुड बी, मतलब या तो एक हो या एक से ज़्यादा हो. मतलब हमें बेसिकली क्या करना है, हमें एक ही बुक को बाहर निकालना है मैथ्स की, है ना. सो 2 की पावर 3 -1 इंटू 2 की पावर 4, तो एज इट इज रहेगा ही रहेगा, बिकॉज केमिस्ट्री सारी बुक्स मेरे पास आएंगी. एंड सिलेक्शन कैन बी मेड सच दैट एटलीस्ट 1 मैथ्स बुक इज सिलेक्टेड.
कम से कम हमें एक मैथ्स की बुक तो सेलेक्ट करनी ही करनी है, हम उससे ज़्यादा भी सेलेक्ट कर सकते हैं. दैट मीन्स हमें बेसिकली जो चांस है वो ये है कि हमें कम से कम एक सेलेक्ट करनी है, उससे ज़्यादा हम लोग कर सकते हैं. सो इट विल बी सिंपली -1 टू की पावर 3 -1, क्योंकि हमने एक बुक बाहर निकाल ली. डन. आई होप इट मस्ट बी क्लियर. Okay, so that's it for today. Thank you so much for viewing my video, and this is the video in which you can just send your query at rumina_gupta@yahoo.com. I'm surely going to reply you, and please, thank you so much. Just keep supporting me. Thank you so much. Bye bye, you all.